All right, guys, did you understand this? What I said? Let it be the name of any games or sports. It is always singular and therefore used with singular verb. कोई भी बीमारी, मम्स इज अ dreaded disease. आप ऐसे भी बोल सकते हो, पर यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस मिल रहा है तो मैं द मम्स भी बोल सकता हूँ. गलत है. क्यों गलत है? यही चीज होती है जो मिस होती है यहाँ पे. हैव गलत है. क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए. उसका पॉलिटिक्स का जो नॉलेज है उसने क्या किया है? उसके कोवर्कर का लाइफ डिस्ट्रॉय किया है. सब्जेक्ट ने डिस्ट्रॉय किया है क्या? नहीं. चलिए. So in the last lecture we studied some of the nouns which have s or es at their end. Still they are considered singular and used with singular verbs. In that I have taught you the names of games, or I told you that let it be the name of any game or any sport, it is always singular and used with singular verbs. There are some nouns of the or some names of the games and sports which has or which have s at their end. So when you see them, you should not be bewildered. Therefore I had explained you. Remember, these are the names of games. Though they have s or es at their end, they are not plural. They are, and therefore they should be used with. This is what I had explained you in the last lecture, right? Now today we are moving on, and one more thing you have to write it down in it. We cannot use any article before the names of games and sports. We cannot use any article before the names of games and sports. We cannot use any article before the names of games and sports. We cannot use any article before the names of games and sports. ठीक है? Any article before the names of games and sports. That means we cannot say a cricket is an interesting game. सही है या गलत है? ये गलत. क्या गलत है इसमें? गलत है. आर्टिकल ए गलत है. वो क्या होना चाहिए था? क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम. लिख लीजिए. यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? अगर है तो पूछना है. जब स्पेसिफिक सेंस में कोई नाउन यूज किया जाएगा, क्या कहा है मैंने? कोई भी नाउन जब स्पेसिफिक केस में यूज किया जाता है तो उस वक्त इट इज फाइन. द फुटबॉल दैट आई प्ले. तो कौन से फुटबॉल के बारे में बात हो रही है? जो खेल रहा हो. ठीक है. द क्रिकेट स्किल दैट ही हैज शोन और द क्रिकेट ही प्लेड. कौन सा क्रिकेट? जो उसने खेला है. तो स्पेसिफिक अगर कोई आपको लग रहा है कि इसमें से मीनिंग निकलता है तो उस वक्त आप यूज कर सकते हो. वो एक्सेप्शनल चीज है. समझ में आ रहा? द एक्सेप्शनल चीज है. जब कभी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सेंस बन जाए, यू कैन यूज excuse me, article the before the names of games and sports too. Getting it? Shall we move on? Names of diseases. किसके बारे में बात हो रही है अभी? याचा का? The football played by this team
inspired many people. एवढंच करा. कौन से फुटबॉल ने लोगों को प्रेरित किया? प्लेड बाय दिस टीम. समझ में आया? तो ये स्पेसिफिक फुटबॉल के बारे में बात हो रही है, जो इस टीम ने खेला है उस फुटबॉल के बारे में बात हो रही है. समझ में आ रहा है सभी लोगों को? समझ में आया? Shall we move on to the next one? All names of diseases are singular. All names of diseases are singular, and therefore they are always used with singular verbs. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ठीक है, वो ये है, we cannot use any article before the names of diseases. We cannot use any article before the names of diseases. Once you are done, let me know. Done? कोई सवाल है यहां तक? तो बीमारियों के नाम कोई? कोविड-19 और टीबी, अस्थमा, अरे वाह, वेरी गुड. और टाइफाइड, थायराइड, बीपी, कैंसर, शुगर, बर, डायबिटीज नहीं, हाँ, डायबिटीज, अरे वाह, वेरी गुड. हाँ, कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारी है? कोलेस्ट्रॉल बीमारी है? बाकी माहित नाही. गालफुगी माहित नाही तुम्हाला? गवर, याला मुडधूस काहीतरी म्हटलं जातं रिकेट्सला. इट इज अ काइंड ऑफ मिझल्स. शिंगल्स सुद्धा इट्स अ काइंड ऑफ काय म्हणतो त्याला आपण, स्मॉल पॉक्स है ना. फिर स्वाइन फ्लू लिख सकते हो, बर्ड फ्लू लिख सकते हो. और कौन सी बीमारी है? जॉन्डिक्स और अपेंडिक्स बीमारी होती है. झालं, लिहिलं का? हा, समजलं काय? How many of you did understand what I explained you? All right, guys, did you understand this, what I said? Let it be the name of any games or sports. It is always singular and therefore used with singular verb. Now, let us try to understand through some examples. I said, the measles have broken out in the town. The mumps is a dreaded disease. Rickets can cause
a serious a ricket can cause a serious harm to your children. असे करू शकता. किसी को यहां तक कोई सवाल है तो सवाल पूछना है, अगर नहीं है तो सवाल फिर कौन पूछेगा? मैं पूछूंगा। और आंसर कौन देगा? आप लोग। कोई सवाल है? नहीं है? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? चलिए, तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? अरे सही है या गलत है? सही है। कोई है गलत वाला? हाथ ऊपर उठाओ। डाउट है सर, गलत है बोल के नहीं बोल सकते। डाउट है? सेकंड वाला गलत लगता है। सर आपने बोला आर्टिकल यूज नहीं करना, हाँ, और आपने द वाला यूज क्यों किया? बताओ जल्दी। अच्छा, स्पेसिफिक नाउन तो सब करेक्ट। तो सब करेक्ट है? श्योर? कौन नहीं है श्योर? क्यों? द मम्स इज अ ड्रेडेड, कौन सा डिसीज है ड्रेडेड? कौन सा डिसीज ड्रेडेड है? कौन से डिसीज के बारे में बात हो रही है? ड्रेडेड कौन सा डिसीज है? मम्स है, तो स्पेसिफिक डिसीज के बारे में बात हो रही है कि जो खतरनाक है। बराबर है ना? कोई भी बीमारी, मम्स इज अ ड्रेडेड डिसीज, आप ऐसे भी बोल सकते हो, पर यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस मिल रहा है तो मैं द मम्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, दोनों सेंटेंस में द यूज भी कर सकता हूं, द को मैं बाहर भी रख सकता हूं। ठीक है, पहले दो है। और कोई डाउट है? तो बाकी सही है। हाँ, लवकर विचार। काय आहे थर्ड वाला? तुला काय प्रॉब्लेम है? रिकेट्स कैन कॉज, रिकेट की वजह से अ सीरियस हार्म, मतलब आपको सीरियस हार्म हो सकता है। हार्म को हम क्या कहते हैं? नुकसान। सीरियस मतलब चिंताजनक नुकसान आपको रिकेट्स की वजह से हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है। अब सही है? कितने लोग कहते हैं सारे के सारे गलत है? अभी अभी भी फर्स्ट वाला गलत है? फिर भी इतना होने के बावजूद क्यों कंफर्म नहीं? तो आधे घंटे बाद बताने वाले थे या 1 घंटे वाले बाद? तो मैं कितनी बार पूछ रहा हूँ, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्यों गलत है? हाँ, यही चीज होती है जो मिस होती है यहाँ पे। हैव गलत है, क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले आप भी बोला कीजिए। डन डन डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम्स ऑफ बुक्स, ये कौन सा मुद्दा है? थर्ड नंबर का है ना? अरे है या नहीं है? ऑल नेम्स ऑफ बुक्स आर ऑलवेज आर सिंगुलर करा, आर सिंगुलर, hence they are used with singular verbs.
Come to the topic, guys. I hope you understood this. Let's have some examples. I said Gulliver's Travel have 5 different stories. 5 different fantastic stories. Tales from Shakespeare was published long before Arabian Nights has 40 interesting stories in it. Okay. AR हाँ अब्रियन होगा ना, अरब्रियन नहीं रे, अरेबियन चाहिए, वो गलत होगा, अरेबियन, ARE, अरेबियन, सॉरी, वो अब्रियन हो गया था ना, अरेबियन स्टोरीज। क्यों आना चाहिए हैव सिंगुलर यहाँ पे, कौन बताएगा? चलो, आपने कहा है हैव चाहिए, क्यों? कितने लोग हैज चाहिए, है ना? क्यों चाहिए हैज, बताइए आप। उनको बताने दीजिए, फिर मैं आपके ऊपर आता हूँ। हाँ जी, उसका नाम सिंगुलर है सर, तो उसका सिंगुलर बोलते हैं। सही कहा है क्या उसने? हर्षदा, हर्षा, बिल्कुल सही। हाँ सही कहा है उसने, सही कहा है उसने, सही कहा है। तो ये सही है, बाकी ये गलत है, बाकी कौन कहता है कि पहला गलत है बाकी सही है? हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ। आता लोग काय बघत होते? पहला गलत बाकी सही। और चलिए जल्दी जल्दी, उत्तर चुकलं की पार्टी पे मिलेगा। वेरी गुड। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? इतना देर क्या देखना है उसमें? किसी का चित्र आ रहा है क्या नजर? हाँ, किताब में। हाँ, तो पहला गलत है, बाकी, अरे पहला गलत है, बाकी ऑनलाइन वाले, वेर आर योर आंसर्स? 1 रॉन्ग। गुलिवरच्या इथे यस पाहिजे। अबे हे आहे ना दिलेला, गुलिवर्स ट्रॅव्हल्स। चल, त्याला आणि सरळ केला, अपॉस्ट्रोफी एस पाहिजे, बरोबर आहे। आता अनन्याचं होतं, चला नेम्स ऑफ बुक वाली ते नंतर येतो। राधिका फर्स्ट रॉन्ग, यस बरोबर आहे। बाकी काय अथर, बाकी का अथर आंसर का है तुम्हारा? तो यहाँ पे ये वाला जो है गलत है, ये वाला जो है सही है, ये वाला जो है सही है, ये वाला भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। मुझे लगा हैव दिया, मैंने देखा नहीं मैंने क्या लिखा है। चलो, हैज 40 स्टोरीज इन इट। और कुछ लिखवाओ? नहीं,
अब इसके बाद में लिखना है नेम्स ऑफ लर्निंग ब्रांचेस। क्या लिखना है? Names of learning branches are always singular. Names of learning branches therefore they are always followed by a singular verb ठीक है। आगे but when the names of learning branches are used to denote knowledge or skill of a person, they are considered plural and used with plural verbs. Next one. We cannot use any article before the names of learning branches. Names of learning branches मध्ये काय येईल? Mathematics, economics, linguistics, त्याच्यानंतर मेकॅनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, त्याच्यानंतर पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, ओनर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मत लीग छे हाँ ओके ते याच्या पुढे काही होणार नाही त्याच्या लक्षात आलं आता ऑलराइट गुड अदर चलो चलो ऑलराइट ये लीलेगा बे कुछ बाकी है क्या लिखना नहीं पर ये ठीक नहीं होता देश के लिए अच्छा नहीं होता है वो तो ये लिख लिया है चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं mathematics is a very tough subject
and economics is taught Harsha in SP College. My linguistics जिसमें भाषा की पढ़ाई की जाती है, भाषा कहाँ से शुरू हुई होगी, कैसे वो डेवलपमेंट हुआ होगा उसका, ये सारी चीजें लिंग्विस्टिक्स में पढ़ी जाती है। Her politics has destroyed life of her co-worker. Phonetics can teach you a lot about pronunciation, चलिए फटाफट फटाफट, वंस यू आर डन लेट मी नो। यस, कितने सही है कितने गलत नहीं है, इनमें से कितने सही है मैडम, कितने गलत नहीं है? ओके, फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट, rest of the sentences are incorrect. This is what you want to say. Yes sir, first third and fourth are right, second and fifth are wrong. सर एक बार 5 दिखाओ सर। फिर से दिखाओ, चलिए फिर से दिखा देता हूं। अभी ये पांचों एग्जाम्पल आपके सामने है। फर्स्ट बरोबर है, कौन है फर्स्ट और थर्ड बराबर है, बाकी गलत है वाले हाथ ऊपर उठाओ, बाकी सही है। तू अशी हालत काऊन अशी एकदम, तू अशी स्टेबल नाही राहू शकत का? येस, द फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली राइट, सेकंड थर्ड राइट, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। चलिए मैं बताता हूं, किसी को अगर इस पे कोई शंका है तो मुझे बोलिए, मैं बता देता हूं। शार्दुल गुड, याचिका गुड, मयूरी फैंटास्टिक, अथर्व गुड, राधिका गुड अटेम्प्ट। ये सही है कि मैंने किया ये? किसको किस पे सवाल है? प्रतीक पूछो, आपका सवाल क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स आर डिफिकल्ट टू स्टडी, इलेक्ट्रॉनिक्स आर डिफिकल्ट टू स्टडी। शाबाश, यहाँ पे पॉलिटिक्स उसका नॉलेज बता रहा है कि उसका पॉलिटिक्स का जो नॉलेज है उसने क्या किया है, उसके कोवर्कर का लाइफ डिस्ट्रॉय किया है। सब्जेक्ट ने डिस्ट्रॉय किया है क्या? नहीं, उसने डिस्ट्रॉय किया है, उसके पॉलिटिक्स ने, उसकी जो राजनीति है। तो पॉलिटिक्स यहाँ पे एज अ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आया है, तो जब एज अ नॉलेज ऑफ स्किल आता है तो उसे प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, पर यहाँ पे सिंगुलर आया है इसलिए गलत है।
यहां पे ये सही होता पर आर्टिकल ने सत्यानाश कर दिया है। बस बात खत्म। आप किस तरह से चीजों को देखते हो ना, एक बार आपने देख लिया तो समझ में आएगा, अगर नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, शैल वी मूव ऑन। समझ में आया सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, कोई भी डाउट नहीं है? तो चलिए मैं दो चार एक सेंटेंसेस सिंपल देता हूं, देखता हूं कितने लोग इसे सही तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। लिखना नहीं है। विराट कोहली प्लेड, हाँ ऐसा है, कोहली आएगा। ठीक है, विराट कोहली प्लेड वेल in the first inning. Rohit Sharma played well in both the innings. चलो छोड़ो, दो ही देता हूं। इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही नहीं है? यस, फटाफट इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही नहीं है बताना है। इनके ऊपर हमें सवाल पूछे जाते हैं, ये याद रखिए सभी लोग। दोनों सही है, एक सही है एक गलत वाले कितने लोग हैं? दोनों गलत है वाले कितने लोग हैं? हाँ, चलिए साक्षी मैडम बताएंगी कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये इसलिए पूछा कि आप लोग ये हमेशा सुनते हो वर्ड, है ना, क्रिकेट पसंदीदा है आपका खेल, तो आपने ये वर्ड सुना होगा। तो मुझे बस ये देखना था कितने लोग बता सकते हैं आप में से। यहां पे ये कि याद रखना है, ये जो वर्ड है इनिंग, ये इनिंग नहीं होता है, ये इनिंग्स होता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ये इनिंग्स ही अपने आप में सिंगुलर है और ये इनिंग्स ही अपने आप में उल्टा दगड़ आणला। इनिंग्स, 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 it is always innings, it is never ever an inning, it is always innings। चलिए फटाफट फटाफट बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे वर्ड्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, मैंने कहा समन्स या समन, फिर समन्स, ये वर्ब है और ये नाउन है और ये कैसा है? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या होगा? ये होगा इसका प्लूरल। सीरीज अपने आप में सिंगुलर होता है, अपने आप में ही ये प्लूरल होता है। लिख लीजिए, ये आपको पता है तो रहने दीजिए, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए।
फटाफट फटाफट लिख लीजिए सारे लोग। हाँ, द किंग समन द प्राइम मिनिस्टर इन हिज कोर्ट, मतलब हाँ, कोर्टाचं समन्स आलं का तुला कधी? समन्स कधी ऐकलं नाही का? समन्स आलं याला, समन्स आलं त्याला, हा शब्दच नाही ऐकला? हाँ, समन का मतलब होता है, इधर समन का मतलब होता है आदेश देना, आदेश देना, आज्ञा देना। या बुलाना, इसको छोड़ देते, यही से। और ये समन्स का मतलब होता है बुलाना, समन्स का मतलब बुलाना, या नहीं, समन्स का मतलब बुलाना नहीं, यहां होता है आदेश पत्र, आदेश पत्र या आज्ञा पत्र। या बुलावा, बुलाना नहीं, यहां पे इसे कहेंगे बुलावा, यहां पे कहेंगे बुलाना। चलो बुलावा, वो गाना है ना, वो आया है, तो समन्स आया है। वो ऐसे एक्चुअली ये समन्स जो है वो लीगल लैंग्वेज में ही ज्यादातर यूज किया जाता है, समन्स। समझ में आया? अरे समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो सवाल पूछिए, फटाफट फटाफट फटाफट। इसके ऊपर जो है टेस्ट होने वाला है आपका, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके ऊपर क्या होगा, अभी टेस्ट होगा। अब टेस्ट मिक्स होगा या इसी के ऊपर होगा? तो अब मिक्स होते आएगा, जितना पढ़ाया है और जो हम पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर, ठीक है? वो तो मेरी मर्जी है ना मैडम। हाँ, कभी भी ले सर, काय कभी भी ले। मला वाटलं माहीच भाषा चांगली आहे का एकट्याची हिंदी। चलो सर, सेकंड मध्ये द नाही पाहिजे ना, कुठल्या द मध्ये ग? कहां पे? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए द? मैं उन इनिंग्स की बात कर रहा हूं जो मुझे पता है, दोनों इनिंग्स में कौन सी, जो दोनों मैंने देखी है। अगर देखी नहीं होती तो कैसे बोलता कि अच्छा खेला है वो? तो स्पेसिफिक हो गया, जो मैंने देखी है वो पर्टिकुलर हो गया, तो आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा, उसे आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लिए यही तक। मिलते हैं, तो मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह इसी टॉपिक के साथ, कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।